It's video number 4, and in this video we shall do the activity of adverb clause of place. First of all, let's see the definition of an adverb. What an adverb is. जी बेटा, an adverb describes a verb, an adjective or another adverb. It tells us how, where, when, how much and with what frequency an adverb can tell. Now let's see what a clause is. A clause is a subject plus verb. It means it gives complete sense of a sentence. It has a subject and a verb of its own. Now let's see what an adverbial clause of place is. The place of the action of the verb of the main clause, identified by answering the question where and introduced by the subordinators. Adverbial clause of place tells the place of the action of the main clause, and the subordinator where preceded by the intensifiers just, right, even, only, such as. So the direction of the action of the main clause, it means it tells all these things. Okay beta, now come to the our activity of adverb clause of place. In this clause, adverb clause of place usually begin with where or wherever. जी बेटा, as I have told you before that for definite place we use where, and when no definite place is mentioned then we use wherever. Now let's start our activity. They left the knife dash they had found it. It means कि जहाँ से उन्हें मिला था उन्होंने वहाँ से उसे मतलब जहाँ पे उनको वो नाइफ़ मिला था उन्होंने उसे वहीं पे छोड़ दिया. तो डेफिनेट प्लेस मेंशन है कि एक डेफिनेट प्लेस से उनको वो मिला था, तो यहाँ पर हम वेयर मेंशन करेंगे. डैश यू मे हाइड आई विल फाइंड यू, कि तुम जहाँ कहीं भी छुपोगे मैं तुम्हें तलाश कर लूँगा. अब नो डेफिनेट प्लेस इज़ मेंशन हेयर, सो वी शैल यूज़ वेयर एवर इन दिस सेंटेंस. चूँकि ये स्टार्ट में है तो इसलिए हमने बेटा डब्ल्यू को कैपिटल करना है. थर्ड सेंटेंस देखें. यू मस्ट गो डैश यू आर सेंट, कि तुम्हें जहाँ भेजा जाए तुम्हें जाना चाहिए. हेयर ऑल्सो नो डेफिनेट प्लेस इज मैंशन, देयरफॉर वी शैल यूज़ वेयर एवर. नंबर 4 सेंटेंस इज दे स्टॉप द कार डैश द रोड रैन नियर द सी. हाँ जी बेटा, जहाँ पे सड़क जो थी वो समंदर के साथ साथ जाती थी वहाँ पर उन्होंने गाड़ी रोकी. हेयर डेफिनेट प्लेस इज मैंशन, सो वी शैल यूज़ वेयर, WHERE. नंबर 5 इज़ डैश यू गो पीपल स्पीक इंग्लिश. अब यहाँ पर भी नो डेफिनेट प्लेस इज मैंशन, सो वी शैल यूज़ वेयर एवर यू गो पीपल स्पीक इंग्लिश. नंबर 6 सेंटेंस इज डैश आई लिव देयर आर नॉट मैनी अदर हाउसेस, कि जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ बहुत ज़्यादा दूसरे घर नहीं हैं. हेयर अगेन डेफिनेट प्लेस इज मैंशनड, सो वेयर विल कम. Okay beta, now let's move to the last activity of our this lesson. Beta, our last activity is of useful words and phrases. First of all, let's see the meanings of these phrases, then we shall use these phrases in the exercise. This shirt is too big, I shall take it back to the shop. Take back mean वापस ले जाना. He is doing too much work already, he cannot take on any more. Take on means जिम्मेदारी लेना, कि वो पहले बहुत काम कर रहा है, वो मज़ीद कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता. Each night he takes his dog out for a walk. Take out का मतलब बाहर ले जाना, कि हर रात वो अपने डॉग को बाहर ले जाता है वॉक के लिए. The dress is too big around the waist, I shall take it in. कि ड्रेस जो है वो वेस्ट के गिर्द से बहुत बड़ा है तो मैं इसे अंदर की तरफ मोड़ लूँगा. अंदर मोड़ना, टेक इन, अंदर मोड़ना. When the festival is over, they take down the decorations. जब फेस्टिवल ख़त्म हो जाता है तो वो डेकोरेशंस को टेक डाउन उतार लेते हैं. When a dress is too long, it must be taken up. Taken up काट लेना, कि जब ड्रेस बहुत बड़ा हो तो उसे काट लेना चाहिए. When he died, his son took over the business. Took over का मतलब संभाल लिया. जब वो मर गया तो उसके बेटे ने उसका बिजनेस संभाल लिया. Now come to the exercise. Add a suitable form of take with a preposition or adverb to these sentences. जी बेटा, हमने मीनिंग्स देख लिए हैं, अब आपने उन मीनिंग्स के अकॉर्डिंग इस एक्सरसाइज को फिल करना है. This big dress must be dash at the waist and dash at the bottom. जी, अब इसको बड़े ड्रेस को क्या करना चाहिए, वेस्ट से टेकन इन, वेस्ट से अंदर मोड़ लेना चाहिए, एंड
बॉटम से उसको टेकन अप काट लेना चाहिए। एज वेल एज बीइंग सेक्रेटरी ही हैड डैश द जॉब ऑफ ट्रेजरर टू, के सेक्रेटरी भी है लेकिन उसने टेकन ऑन का मतलब जिम्मेदारी ली हुई है ट्रेजरर की भी, ठीक है। नाउ दैट द मैनेजर हैज़ गॉन आई वंडर हु विल डैश द बिजनेस, कि अब जबकि मैनेजर जा चुका है तो टेक ओवर होगा, कि कौन इस बिज़नेस को टेक ओवर करेगा। द पिक्चर ऑन द वॉल इज़ अगली, टेक इट डाउन, जी दीवार पर जो तस्वीर है वो ख़राब है, गंदी है, उसे नीचे उतार दो, टेक इट डाउन। अब यहाँ पर देखें बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस है, फुल स्टॉप के बाद है तो आपने टेक का टी जो है वो कैपिटल करना है। ही डैश हिज वाइफ डैश वंस अ वीक, वो अपनी बीवी को हर हफ्ते बाहर ले जाता है, टेक्स आउट आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ही की वजह से हमने एस का एडिशन करना है वर्ब के साथ, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब के साथ एस और एस का एडिशन होता है, ठीक है। ही टेक्स हिज वाइफ आउट, डैश द एम्प्टी बोटल्स टू द शॉप वेयर यू बॉट दैम, हाँ जी, अब इन खाली बोतलों को शॉप पर वापस ले जाएं जहाँ से आपने इन्हें ख़रीदा था, तो टेक बैक आएगा। यहाँ पर भी बेटा देखें, टेक जो है ये सेंटेंस के स्टार्ट में है तो आपने फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है, ठीक है बच्चे। ये आपकी एक्सरसाइज थी, आपने इनको अच्छी तरह से नीट राइटिंग में फिल करना है पेंसिल के साथ, तो आपने इसको अच्छे से लर्न भी करना है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।